Hello student, good evening one and all. In the previous lecture number 7, we discussed about the phase diagram for carbon dioxide as well as water. Okay. Thereafter we discussed the critical temperature. Critical temperature is that temperature where the certain gas to be liquefied, it is not possible to increase or decrease the pressure to liquefy the gas. So before that we have to decrease some temperature. We have to cool down the gas so that it can liquefy. So whatever the temperature so that the gas can liquefy, okay, so that temperature is called as the critical temperature, right? So on the basis of critical temperature, so we define the gaseous phase or gaseous state in the two form, that is the gas form and vapor form. Okay, so let us see what is the gas. A substance that is in the gaseous phase above the its critical temperature. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव होगा तो जो भी स्टेट होगा दैट विल द गैस, दैट सब्सटेंस वी कॉल्ड गैस. ओके, एंड द सब्सटेंस दैट इज इन द गैसियस फेज और गैसियस स्टेट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट सब्सटेंस इज नोन एज वेपर. अंडरस्टूड? देन द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अलोन विद द प्रेशर, राइट? But the vapor can be liquefied by increasing pressure on the vapor and it can directly convert into the vapor form. Okay, gas exert a pressure on the wall of the container. Similarly, the vapor also exert a pressure on the wall of the container in which it is contained. Now we have finished the most of the theory part of this lesson. Now let us solve the numerical based on the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. We have discussed in the previous lecture. Latent heat is the hidden heat, so that which can use to change the state from solid to liquid, and the latent heat of vaporization, it is the amount of heat required to change the state from liquid to gaseous state. Understand that we call at a boiling point, that is called as latent heat of vaporization. So let's look at the numerical which is solved in the text. When 0.1 kg matlab 100 gram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.32 kg 320 gram of water at 35 degree Celsius. So temperature of water is given. तो चलो थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन करते, राइट? तो ये कंटेनर है, वेसल है. Okay, this vessel contains some amount of water, that is 320 gram or 0.32 kg of water is here, is to in liquid state, and in this we pour some cubes of ice here. Okay, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस. तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे, जब आइस पानी में डाला नॉर्मल टेम्परेचर पे 35 डिग्री पे, तो डेफिनेटली दैट वाटर विल कूल्ड और उसका टेम्परेचर कम होगा. एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर भी दिया है. द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दैट इज कैपिटल T इज इक्वल टू 7.8 डिग्री सेल्सियस. इट इज गिवन 7.8 डिग्री सेल्सियस. व्हाट दे आस्क टू फाइंड, कैलकुलेट द latent heat of fusion of ice, right? That we have to calculate. So let us calculate first the given quantity. जो दिया है वो लिख लेते पहले. तो ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4186. देन विल राइट द मास ऑफ आइस. मास ऑफ आइस इज 0.1 kg. देन मास ऑफ वाटर MW विच इज 0.322 kg, 32 kg. एंड टेम्परेचर ऑफ आइस दिया है. टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस and temperature of water, that is TW, which is equal to 35 degree Celsius. Then the temperature of final temperature, the final temperature is also given, that is 7.8 degree Celsius. That is temperature of mixture which we called. Then here the heat loss by the water. यहाँ पे पानी क्या करेगा, पानी के अंदर जो भी हीट है 35 डिग्री पे, तो हीट लॉस करेगा, राइट? So heat lost by water is equal to mass into specific heat into fall in temperature. Okay, so that is simple formula, ms
delta T. This formula you have to remember. So here that is mw mass of water into specific heat of water into the final temperature, TF, or we can the TW minus final temperature or temperature of mixture will be here, right? Then let us substitute it. Mass of water is 0.32 multiplied by specific heat capacity of water is given, which is the highest among the substance, that is 4186 joule per kg per Kelvin, okay, into change in temperature, that is fall in temperature, 35 minus 7.8 degrees Celsius. Okay, after solving this you will be getting direct, just do the calculation with the help of log table, right, and you will get the answer. Here we have to take final temperature minus temperature of water here, तो उसको उल्टा करेंगे, doesn't matter, subtraction will be same, my answer will be same. Okay, तो यहाँ पे आंसर जो नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द वाटर, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर, दिस वी कैन राइट. So the answer is minus 36,434.944 joule. This is the heat loss by water when the cubes of ice, 0.1 kg of ice mixed with water of having a temperature 35 degree Celsius. तो अभी ये होगा हीट लॉस बाय वाटर. अभी फाइंड करना है हमको दी हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस. तो आइस मेल्टिंग को कितना हीट लगेगा, राइट. तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन ऑफ द हीट इंडिकेट लॉस ऑफ हीट बाय वाटर. ओके, तो अभी चलो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं इधर. So heat required to melt ice, heat required to melt the ice, okay, that is equal to mass of ice into latent heat of fusion of ice. So this is what the formula, okay. तो यहाँ पे क्या आएगा 0.1 into LF. LF हमको निकालना है, इसको इक्वेशन कुछ दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे, दिस इज इक्वेशन 2. ओके, नाउ the heat required to raise the temperature of water provides to final temperature. Heat required to raise the temperature of water from ice to final temperature. So जो आइस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 0 डिग्री से 7.8 डिग्री, तो मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ही आएगा यहाँ पे, इंटू राइजिंग टेम्परेचर दैट इज T माइनस T आइस. ओके, so this will be 0.1 into 4186 into 7.8 minus 0. So this can be written as 4186 multiplied by 0.78. तो इसका आंसर आएगा, you will get the answer for this 3265.08 joule. This much amount of heat will gain. तो heat gain होगा यहाँ पे, वहाँ पे heat loss होगा. तो by using the principle of calorimetry, heat loss is equal to heat gain. Okay, so heat gain
सो दिस विल बी, लेकिन यहाँ पे हीट गेन इधर भी होगा है, ऊपर यहाँ पे भी हीट लगेगा, राइट. तो हीट लॉस कितना हुआ, द हीट लॉस इज इक्वल टू 3 to माइनस इट इज 3634.944, ओके, माइनस आएगा विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू LF प्लस 3265.08 जूल. ओके, अभी इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, राइट. तो क्या होगा वहाँ पे, देयर विल बी subtraction. Actually we have to take the magnitude only. Okay, so LF is equal to 36,434.944 minus 3265.08 डिवाइड बाय 0.1. तो इसको पूरा सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा. आई विल गिव डायरेक्ट आंसर 3.31698 इंटू 10⁵ जूल पर kg. दिस इज द latent heat of fusion of ice. Understand? To melt that ice into water. तो उसको melting को जो भी heat लगेगी, that is this much amount of heat will required. Take a screenshot. Now next numerical which is unsolved in the textbook, page number 140, question number 3 का third. Specific latent heat of vaporization of water, that LV, is given. So let's write the given quantity here. Given latent heat of vaporization is equal to 2.26 into 10⁶ joule per kg. Calculate the energy needed to change 5 gram of water into steam at 100 degree Celsius. Okay, तो यहाँ पे मास कितना दिया है, मास ऑफ वाटर, हॉट वाटर, दैट इज 5 ग्राम वाटर इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे तो कोई राइज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है. दिस इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, स्टीम, राइट. सो नो चेंज ऑफ स्टेट, no change in temperature, no change in temperature, simply change of state from liquid to vapor or steam, right. So the amount of heat Q is equal to the mass into L into V. So we need to calculate amount, how much amount of heat required, right. Q is equal to mass of water is, it is given in gram, so convert into kilogram, 5 into 10⁻² minus 3 multiplied by specific latent heat is given, that is 2.26 into 10⁶, which is equal to, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, कैरी 3, 5 2 10, 10 plus 3 13, carry 1, 5 2 10, 10 plus 1 11, okay, or 1 to 1 11.30 into 10⁻² minus 3 plus 3 6 plus 3, okay. So this will be 11300, that is joule. So this much amount of it required, right, to change the state from liquid to vapor state at 100 degree Celsius. So take a screenshot. Hello student, next topic is heat transfer 7.9. Many times we observe in our daily life, right, जब हम गणपति की आरती करते हैं और जब आरती करते हैं तो जो कैंपर होता है, कैंपर जब जलाते हैं वो स्पून पे, स्पैचुला पे, तो कुछ देर के बाद वो स्पून गर्म हो जाता है. कैसे पॉसिबल है, राइट, बिकॉज द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर एंड
where we are holding it. Second example, जब हम पानी गर्म करते हैं राइट नहाने के लिए, तो शुरू में देखते कि इतना पानी गर्म हुआ है. एक्चुअली द हीटर कॉइल जो होता है बॉटम पे होता है, लेकिन टॉप में चेक करते तो शुरू में ठंडा लगता है, बाद में धीरे धीरे लगता है गर्म लगता है. तो कैसे पानी गर्म होता है? दैट इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. फिर जब हम कोई फायर है, अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर के समय टाइम पे हम लोग फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, शेकोटी जलाते हैं राइट. तो वी फील हॉट राइट. तो क्यों गर्म लगता है? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, तो ये सब जो है हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. सो हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, so let's see, there are three mode of transfer of heat. The number one is conduction of heat. Conduction of heat. Second is convection. Convection of heat. And third one is radiation. We will see one by one. तो चलो पहले देखते हैं. सबसे पहले conduction of heat. Conduction of heat or heat transfer by conduction of heat. For this we have to take some rod, metallic rod लेते. These are the two ends of metallic rod. Suppose this is end A, this is end B. Every substance is made up of the regular arrangement of atoms. यहाँ पे atoms होते हैं, molecules होते हैं. Okay? यहाँ पे सॉलिड एटम लेंगे हम लोग. These are the atoms of the solid conductor. आयरन रॉड ले लो, ब्रास रॉड ले लो, जो भी है, कोई भी मेटालिक रॉड ले लो राइट. वुडन रॉड नहीं चलेगा because it is insulator. We will discuss later on why wood cannot carry the heat. Okay, तो ये मेटालिक रॉड है. These are the atoms of the metallic rod. And at one end if I am supplying amount of heat, यहाँ पे कुछ हीट दे रहा हूँ, और वन एंड इज हॉट. और दूसरा मोड भी यहाँ पे, दूसरा भी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं आप. यहाँ पे उसको ओपनिंग में यहाँ पे जो हॉट चैम्बर है, हॉट चैम्बर में इसको इंट्रोड्यूस करो, हॉट चैम्बर. सो व्हाट विल हैपन? द फर्स्ट ऑफ ऑल द हीट रिसीव्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल व्हिच आर वेरी क्लोज टू दिस चैम्बर. तो सबसे पहले ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. एंड आफ्टर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाय दिस एटम्स, they do not actually move, or they are not moving personally or practically from one place to another place. They just vibrate about their mean position. Okay, and as they vibrate they increase their amplitude. उसका amplitude बढ़ता है right. their जो vibration है वो बढ़ता है. and as they vibrate they transfer their energy to the neighboring atoms, and hence that heat energy reach at this point B. So let here temperature is T1, here temperature is T2 right. And this heat transfer is possible only when if there is a difference in temperature. Okay, heat transfer possible only if there is temperature difference. तब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं. एंड मटेरियल मीडियम, यहाँ पे मटेरियल मीडियम है इसलिए हीट ट्रांसफर हो रही है. दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड of process of transfer of heat in which particles of the medium at hot end or from hot end to cold end, from hot end to cold end, heat mode of transfer of heat in which particle of the medium from hot end to cold end transfer energy, heat energy without actual bodily movement, without actual
bodily movement तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो एक एक्चुअली मूव नहीं होते, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन एंड दे ट्रांसफर देयर एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने अगर सोचा कि ये डस्टर है मेरे पास, राइट, और सब बच्चे से बैठे इस बेंच पे बैठे, राइट, तो क्या करेगा, आई विल गिव दिस डस्टर टू द बॉय हु इज सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंच, ही विल स्टैंड अप एंड गिव डस्टर टू द नेबरिंग वन, बाजू वाले को देगा, फिर वो खड़ा होगा फिर देगा, मतलब खड़े होके वो देगा, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे देगा वो, ऐसा नहीं, ही विल वाइब्रेट, ही विल मूव अप, राइट, तो वो खड़ा होगा, ही विल स्टैंड अप एंड देन गिव द डस्टर टू द नेबरिंग फ्रेंड्स, ओके, और ये डस्टर लास्ट तक जाएगा, मतलब दिस डस्टर कैन मूव फ्रॉम वन स्टूडेंट टू द लास्ट स्टूडेंट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट्स. वो सिर्फ खड़ा होकर उसको बाजू वालों को देगा, ले ले तू, इसे दे देगा, ट्रांसफर करेगा. तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, दैट इज द कंडक्शन ऑफ हीट इन विच देयर इज नो एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, right, and this is possible, conduction of heat is possible only in solid, remember, right, so conduction of heat possible only in solid, yes, excuse me, possible only in solid state only, right. Now in solid only metals can carry, metals are good conductor of heat. Why metals only, why not wood, why not insulator, right, why not plastic? Because metals having free electrons in their outermost orbit, metals having free electrons in their outermost orbit, just like a flow of electric currents, right, the इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है मेटल में से, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली यहाँ पे भी हीट क्यों कैरी करते, बिकॉज दे कैरी द अमाउंट ऑफ हीट because of these electrons are free to move, right, and that's why they transfer their energy to the neighboring atoms. Okay, so now what are the two conditions? I told you that condition, the first condition is the temperature difference, condition for conduction of heat. So two conditions are there. There must be temperature difference, there must be temperature difference and for conduction of heat there must be material medium to transfer the heat, must be material medium for transfer of heat, for conduction of heat. So these are the two conditions for conduction of heat, right. So the next is the process of conduction of heat, how it is possible, right. तो मैंने बताया यहाँ पे कि first of all the molecule which receive the amount of heat, after receiving the thermal energy, they vibrate with the large amplitude. The particle, the molecule which are very close to the source of heat, right, so they will vibrate very fast. तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, राइट, एंड दिस फ्लो ऑफ हीट विल कंटिन्यू टिल एंटायर दिस रॉड विल अटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक होता नहीं तब तक वहाँ पे हीट फ्लो होता रहेगा, राइट. दिस विल कंटिन्यू द फ्लो ऑफ हीट. अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट हैपन.
Okay, let's see the good conductor and bad conductor of heat. So good conductors of heat are those material which can easily transfer the heat from one place to one point to another point. Okay, so good conductor of heat, and bad conductor or insulator. Bad conductor of heat or insulator. So what are the good conductor of heat? Especially all metals, the substance like metal are good conductor of heat because of free electrons, because they contain free electrons. Here substance which do not carry heat from one point to another point, Why these are bad conductor or insulator? Because do not have free electrons, right? So यहाँ पे rubber, wood, plastic, etc. So these are the तुम्हारा वूल है, वुड है, थर्माकोल है, ऑल दीज आर दी इंसुलेटर. और यहाँ पे सब मेटल्स है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, etc. iron, all these are the good conductor of heat. So take a screenshot. हेलो स्टूडेंट्स, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है दैट सब्सटेंसेस आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, these are the metals are good conductor of heat as well as good conductor of electricity. Okay, जैसे bad conductor है, bad conductor of heat are also bad conductor of electricity like wood, mica. Okay, then mica is good conductor of heat. Mica carries the heat. Okay, wood, plastic, rubber, etc. Okay, but there is one substance which is a good conductor of electricity but bad conductor of heat, that is the graphite. Graphite is bad conductor of heat, but good conductor of electricity. Okay, similarly water is a bad conductor of heat but good conductor of electricity. Impure water अगर लिया तो वो हीट कैरी नहीं करता है बट हीट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है. अभी देखो यहाँ पे जनरली माइका जो है, माइका मटेरियल, माइका यूज इन एन इलेक्ट्रिक आयन. अगर आप ये इलेक्ट्रिक आयन को थोड़ा सा डिसेक्शन करोगे, खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक ये होता है, कॉइल होता है, राइट? सो कॉइल शेप ऐसा होता है दिस वे, राइट? एंड दैट कॉइल शेप इज मेड लाइक दिस, which is enclosed in a thin film of mica sheet. Okay, तो ये क्या करता है, माइका क्या करता है, माइका कैरीज द हीट
but do not carry the electricity. Which is the bad conductor of electricity? Mica is bad conductor of electricity, but good conductor of electricity. Heat. Good conductor of heat. When we do iron on clothes, right? So क्या करता है? When the coil get heated, जब coil heat होती है, right? So that because of this mica sheet, we do not get shock, we do not get current, electric current to our hand. But because of the heating this coil, that heat can transfer through this mica sheet to the bottom of the metallic base. जो भी metallic base इस तरह का उसको टच करता है, and it can transfer heat to the base of the electric iron, but do not carry electricity. तो this is the main difference. Okay, वो आपको याद रखना है. Then another question is, which material can be used as a thermal insulators and why? Thermal insulators are those substances which do not carry the heat easily. They are called as thermal insulators, right? अभी thermal insulator में क्या क्या आता है? The glass, wood and rubber, plastic, these are called as thermal insulator because they do not have the free electrons. अगर उनके free electrons होते तो they would have carry the heat also as well as electricity also. Okay, now next is what is the thermal conductivity? Very important concept, thermal conductivity. जैसे कि electrical conductivity हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. सो जिसमें जो कंडक्टिविटी होता है, द सेम वे हियर द थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज द एबिलिटी और टू मेजर, एबिलिटी टू मेजर द कंडक्शन ऑफ हीट, कि कितना हीट फ्लो हो रहा है, राइट. तो दोज सब्सटेंसेस आर हैविंग अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी, सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे कि कॉपर है, राइट, ये एल्यूमिनियम है, आयरन है. तो उसमें से कॉपर जो है इज हैविंग अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी विच कैरी द हीट वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू आयरन. इसीलिए इन आवर किचन आवर मदर इज यूजिंग एज अ कॉपर बेस्ड यूटेंसिल. कॉपर बेस्ड जो यूटेंसिल होता है, जब आपने अगर स्टील यूज़ किया तो स्टील में क्या होता है, इन द स्टील वेसल उसका जो बेस होता है, स्टील वेसल का बेस, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, सम हॉट स्पॉट आर फॉर्म, हॉट स्पॉट्स आर फॉर्म एट द बेस ऑफ द स्टील वेसल. तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी खाना है वो जल जाता है, दैट विल गेट बर्न, राइट. पर्टिकुलर प्लेस पे वो ऐसे स्पॉट रहते, वहाँ पे वो खाना जल जाता है. तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर का चाहिए, इवन टेम्परेचर चाहिए, इवन हीटिंग चाहिए. तो फॉर इवन हीटिंग वी हैव टू यूज अ कॉपर वेसल. फॉर इवन हीटिंग ऑफ बेस, even heating of base of utensil, okay, we have to use copper base rather than steel base. Okay, so this is what the, so thermal conductivity is the measure of the ability of the solid to conduct heat through it, that is called as thermal conductivity. चलो लिख लेते हैं thermal conductivity का. thermal conductivity, property by virtue of which, okay, of a solid is a measure of a solid is a measure of ability of the solid, to conduct heat through it, So we have some application for this thermal conductivity. इसका हम डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन भी देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का. उसके पहले कुछ एप्लीकेशन देख लेते. द थिक वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड व्हाइल मेकिंग कोल्ड स्टोरेज रूम. कोई भी कोल्ड स्टोरेज रूम अगर बनाना है, राइट, शीतगृह हम बोलते हैं उसको, तो अगर वो बनाना है तो जो वॉल होती है, वॉल ऑफ दैट रूम मेड अप ऑफ वेरी थिक. व्हाई नॉट थिन? ओके, थिक इसलिए होता है कि देयर इट शुड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट विद द सराउंडिंग,
राइट। तो अंदर जो ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, अंदर की जो हीट बाहर जाएंगे, बाहर की हीट अंदर ही आएगी। सो देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, ओके, फॉर बेटर इंसुलेशन, राइट। देन अभी आजकल आप देखो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो आप देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कि जो क्ले ब्रिक होता है, लाल कलर की ब्रिक, ओके, सो दैट ब्रिक अभी वो ये जो रेड ब्रिक होती है क्ले ब्रिक, इसके जगह पे दे आर यूजिंग अ सीमेंट ब्रिक, सीमेंट का ब्रिक होता है और विच इज हॉलो, थोड़ी बीच में हॉलो होती है, नॉट कंप्लीटली सॉलिड। तो हॉलो इसलिए होते हैं क्योंकि इस बीच में एयर गैप रहता है, दैट एयर गैप एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो क्या करता है कि विच डू नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, राइट। तो गर्मी में भी ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहेगा, उल्टा, दैट इज व्हाट द पर्पज ऑफ दैट, ओके। देन द हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइक कौन सा मटेरियल होता है वो, बैकलाइट, ओके, एबोनाइट और बैकलाइट। तो बैकलाइट मटेरियल इज यूज, काला कलर का आपने देखो कुकर वगैरह जो होता है, जो पैन होता है, फ्राइंग पैन होता है, तवा होता है, तो उसका जो हैंडल होता है दैट हैंडल इज मेड अप ऑफ ब्लैक कलर, इसलिए होता है क्योंकि वो जो मटेरियल है दैट इज अ बैकलाइट और विच इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, राइट। तो इंसुलेटर उसमें अच्छा होता है ताकि जब हम कोई भी चीज़ गर्म करें तो हमको हॉट ना लगे, राइट। सो दैट्स वाई द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। देन अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 ब्लैंकेट और सिंगल ब्लैंकेट, राइट, तो हम क्या करते हैं 2 ब्लैंकेट यूज करते हैं, पतले वाले तो चलेगा, राइट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ थिक ब्लैंकेट, ओके। सो इन विंटर वी यूज 2 thin blanket in place of single thick blanket, because 2 thin blanket के अंदर जो एयर रहती, जो हवा रहती, that air act as the insulator and which prevent us from feeling cold, right। तो हम बार नंबर ऑफ गारमेंट भी क्यों पहनते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ इंस्टेड ऑफ वेयरिंग अ सिंगल थिक शर्ट, राइट, तो बिकॉज टू गेट द एयर ट्रैप बिटवीन द 2 क्लोथ्स, स्वेटर भी पहनते, हाँ, कंबल भी ओढ़ते, फिर शर्ट भी रहता है, सब कुछ रहता है, राइट। तो भी ठंड लगती है, क्यों, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो गया, राइट। सो बेस्ट वे टू वियर द नंबर ऑफ ब्लैंकेट, राइट, एट अ टाइम, नंबर ऑफ स्वेटर्स, डबल स्वेटर पहनो, तो क्या होगा उसके अंदर जो हवा ट्रैप होगी, दैट एयर ट्रैप बिटवीन द 2 गारमेंट्स, राइट, दैट एक्ट एज अ इंसुलेटर, ओके। सो हियर ऑल्सो द सेम थिंग कि 2 बेडशीट के जगह, एक सिंगल बेडशीट के जगह 2 बेडशीट लो, गर्मी लगेगी, राइट। सिंगल ब्लैंकेट के जगह पे 2 ब्लैंकेट यूज करो, सो इट इज बेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट वाटर व्हेन poured इन अ ग्लास बीकर इट ब्रेक्स। कोई भी अगर ग्लास बीकर लिया, राइट, ये ग्लास बीकर है, थोड़ा सा थिक होता है, उसका जो वॉल होता है, दैट वॉल ऑफ द ग्लास बीकर इज थिकर। इसमें हॉट वाटर डाल दो, जस्ट pour द हॉट वाटर, ग्लास इज अ इंसुलेटर, ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, यहाँ पे द इनर साइड ऑफ द ग्लास इज एक्सपांड, और बाहर का एक्सपांड नहीं होता है, तो वहाँ पे अनइवन एक्सपांशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अनइवन एक्सपांशन दैट ग्लास विल ब्रेक। जो भी टम्बलर है, ग्लास टम्बलर, वो ब्रेक हो जाएगा इफ यू pour द हॉट वाटर इनसाइड इट, ओके। नाउ द mechanism of thermal conduction and temperature gradient, अब करना पड़ेगा इसको। Now the next topic is mechanism of thermal conduction and temperature gradient. Before that we will see the variable state and steady state of the temperature, right. Suppose if you take a metallic rod, thick metallic rod, uniform rod है वो, उसका जो thickness है यूनिफॉर्मली हर जगह पे सेम है, एंड
उसका एक जो एंड है, वन एंड ऑफ द रॉड, दिस इज द बी एंड, वन एंड ऑफ द रॉड ए एनक्लोज इन अ स्टीम चेंबर, यहाँ पे स्टीम चेंबर में उसको एनक्लोज किया है, यहाँ पे पूरा स्टीम है, एंड टेम्परेचर ऑफ दैट स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस, या गर्म पानी में डाला तो भी चलेगा, ओके, द वाटर, हॉट वाटर एनक्लोज इन दिस, राइट, उस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 के ऊपर जाएगा ही नहीं टेम्परेचर, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, द एंड विच इज वेरी क्लोज टू द स्टीम और हाई टेम्परेचर रीजन, सो इट विल शो हाई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है शुरू में 80 डिग्री दिखाएगा, 80 ज़्यादा हो गया, 60 लेते हैं शुरू में, ओके, 60 डिग्री लेते, ओके, देन एट दिस पॉइंट यू विल गेट 40, फिर एट दिस पॉइंट इट इज 30 एंड एट दिस पॉइंट इट इज 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, राइट, एज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड there is a continuous flow of heat, right, so this is called as a variable state, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, variable state। चलो और दूसरा कंडीशन लेते हैं, वही चेंबर रहेगा पर सिर्फ मैं रॉड दिखाता हूँ यहाँ पे, दिस इज द सेम रॉड, राइट, आफ्टर सम टाइम इंस्टेड ऑफ 60 डिग्री यहाँ पे आएगा आपका 80 डिग्री टेम्परेचर हो गया, राइट, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, राइट। तो अगेन देयर इज अ वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द रॉड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरिएबल स्टेट ऑफ द टेम्परेचर, ओके। जो थर्ड केस है यहाँ पे, थर्ड केस में सपोज दिस इज द स्टीम चेंबर और हॉट वाटर चेंबर 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, एंड इसका जो एक एंड है यहाँ पे, आई एम जस्ट इंसर्टिंग दिस रॉड टाइटली क्लोज, यहाँ पे एंड ए है, यहाँ पे बी है, राइट, और मान लो कि टू गेट वॉट आर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू दिस, उतना हीट जाना चाहिए, देयर शुड नॉट बी लॉस ऑफ इन हीट, तो हम इसको क्या करेंगे, रॉड को यहाँ पे कुछ इंसुलेशन उसको कवर कर देंगे, इट विल कवर बाय द थर्माकोल, थर्माकोल आजकल यूज करते हैं, राइट, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, तो यहाँ को ये रॉड को थर्माकोल से कवर कर दिया है, दिस इज कोटेड कवर विद द थर्माकोल, राइट, कवर्ड विथ insulating material, so that there will no loss of heat with the surrounding, right। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, you will get some temperature again 80 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो even as the time goes on increasing, every section of this having a constant temperature, but a different section having different temperature, right, तो लेकिन वो चेंज नहीं होगा अभी, दिस विल बी द कांस्टेंट, दिस विल कांस्टेंट, दिस विल कांस्टेंट, दिस विल कांस्टेंट, ओके। एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, अवे फ्रॉम इट, जितना आप दूर जाओगे, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टेम्परेचर कम होगा, राइट। तो मतलब द एंड विच इज वेरी क्लोज टू द सोर्स, चैम्बर के पास जो एंड होगा वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके। लेट अस टेक दिस टेम्परेचर T1, ओके, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4, ऐसे अलग अलग टेम्परेचर लिया हमने, राइट। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस डिस्टेंस इज B, और लास्ट वाला डिस्टेंस आएगा C, राइट। सो A to B कितना है, यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे, ये B और ये यहाँ पे C और D और E, राइट। तो AC जो होगा, AC विल बी स्मॉल a, ओके, और AD जो है विल बी स्मॉल b, और AE इज इक्वल टू स्मॉल c, ये डिस्टेंस है, राइट। इसको एक काम करते, इसको x, इसको y, इसको z लेते, बेटर फॉर डिस्टेंस, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो टेक अ टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, सो T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x, और T1 माइनस T3 will be y, और T1 minus T4 will be z।
So as you are taking the temperature difference upon its distance from the hot source, right, जो distance है उससे divide किया हमने, तो this term is known as temperature gradient. इसको ही temperature gradient बोलते हैं. The rate of change of, right, the change in temperature with distance from the source, so that is called as temperature gradient. Okay, और यहाँ पे जो टेम्परेचर मिला है, दिस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, विल नॉट चेंज. इफ द टेम्परेचर विल नॉट चेंज, क्योंकि यहाँ पे सोर्स अभी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट, यहाँ पे 80 है, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा, बट दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट. इसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट. ओके, और यहाँ पे शुरू में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे रॉड को इंसर्ट किया इसमें अंदर, राइट, तो यहाँ पे कुछ थर्मामीटर लगा दिए, राइट, थर्मामीटर आर इंट्रोड्यूस हियर, राइट, यहाँ पे होल बना दिया और यहाँ पे मर्क्यूरी डाल दिया, मर्क्यूरी का ड्रॉप डाल दिया, सो दैट द थर्मामीटर बल्ब जो है इट विल गेट प्रॉपर थर्मल कॉन्टैक्ट. तो टू गेट द प्रॉपर थर्मल कॉन्टैक्ट यहाँ पे थोड़ा मर्क्यूरी उसको पुट कर दिया, पोर कर दिया, सो दैट इट विल गेट द प्रॉपर थर्मल कॉन्टैक्ट टू गेट द एग्जैक्ट रीडिंग ऑन द थर्मामीटर. ओके, सो दिस इज वेरिएबल सेट एंड दिस इज द स्टेडी स्टेट. तो हम बच्चों हम देखेंगे अभी कि व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, सो फॉल ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज फॉल ऑफ टेम्परेचर with distance between the ends of the rod, between the ends of rod in the direction of flow of heat, in the direction of flow of heat is called temperature gradient, is called temperature gradient. ओके, तो मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x, जनरल फॉर्मूला है. ओके, व्हाट कुड द यूनिट ऑफ दिस, द SI यूनिट फॉर दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस पर मीटर. ओके, और केल्विन पर मीटर, Kelvin per meter. This is not per kilometer, so it is Kelvin per meter. So we have discussed about the SI unit of temperature gradient, that is the fall of temperature with respect to distance from the hot source. Okay, so T1 minus T2 divided by x is the distance between two hot end and cold end. तो यहाँ पे T1 क्या है? T1 is hot end, temperature at hot end, and T2 is temperature at cold end. Cold end, right? And x is the distance between hot and cold end of the rod. Fine. Okay, now what is the dimension of this temperature gradient? So dimension of this temperature gradient will be the dimension of temperature, okay, that is L, यहाँ पे आएगा जो डिस्टेंस आएगा इसका T1 T2 का आएगा L0 M0 देन टाइम T0 एंड टेम्परेचर का K1 डिवाइड बाय नाउ द डिस्टेंस का L raised to 1. नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस डायमेंशन, दिस L raised to 1 ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव L raised to -1, M raised to 0, T raised to 0 and K raised to 1. This is the dimension of temperature gradient. Okay, the next important term, that is the coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity. Okay,
सो अंडर स्टेडी स्टेट, क्या हम उसको बाद में डिफाइन करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला वो डिराइव कर लेंगे. अंडर स्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर, ओके, बट एट डिफरेंट सेक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर, राइट, बट वो कांस्टेंट रहेगा, तो हम उसको बोले स्टेडी स्टेट, राइट. द हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और कोल्ड एंड, हॉट एंड टू कोल्ड एंड, राइट, लोअर टेम्परेचर, दैट इज हॉट टू कोल्ड एंड, राइट. तो यहाँ पे हम एक क्यूब लेंगे, वी विल टेक 1 क्यूब ऑफ दिस यूनिफॉर्म क्यूब. इसका जो डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूब आर, ऑल साइड्स आर 1 मीटर या x मीटर जो भी लिया, राइट. तो 1 मीटर लिया, 1 मीटर लिया, राइट. तो जो भी एरिया आएगा, राइट, दैट एरिया. देन यहाँ पे एक जगह पे हॉट एंड, दिस इज कोल्ड एंड. और इनिशियली हमने यहाँ पे कंडीशन ऐसा लिया कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लो दिस इज T1, टेम्परेचर एट कोल्ड एंड T2, तो T1 माइनस T2 we will take 1 degree Celsius, okay, or the distance between these two ends is 1 meter. Then whatever the amount of heat flow from hot end to cold end, right, separated by a distance 1 meter in the cube, तो वो जो होगा that amount of heat flow is known as the coefficient of thermal conductivity, which is denoted by K. उसको हम K से डिनोट करते हैं. ओके, तो इसका डेफिनेशन प्रॉपर लिख लेते. द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट that flows in 1 second, between the opposite faces of cube of side of 1 meter, the faces being kept at a temperature difference of 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अभी मत है कि दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन है, और द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स इज 1 मीटर, दैट इज साइड ऑफ क्यूब, राइट. एंड इन 1 सेकेंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम hot end to cold end in 1 second of the cube of side 1 meter, right, keeping the temperature difference 1 degree Celsius, that amount of heat flows is known as thermal coefficient of thermal conductivity. Okay, coefficient of thermal conductivity. Higher the value of K, higher the value of thermal conductivity, it is the good conductor of heat. वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टर अच्छा होगा, मतलब it will carry the amount of heat better, the good conductor of heat. से कॉपर है, आयन है, तो कॉपर आयन में कौन गुड कंडक्टर है, कॉपर, बिकॉज इट हैज हाई वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, राइट. तो अभी हमको इसका डेरिवेशन डिराइव करना है, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Very important concept in this chapter, that is the expression for coefficient of thermal conductivity. So let's have the cube, okay, metallic cube, which has uniform cube. It is having two faces we have taken, and each face is having the same area of cross section, and distance between the two faces is small x, and suppose the temperature at one face is taken as T1, that is hot end, and the other face is T2, that is the cold end.
Okay, and when the heat is flowing from in the steady state, in steady state we have discussed that what is the steady state and variable state. Okay, तो वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर वेरी होता है, हीट वेरी होता है, राइट, लेकिन स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट दैट पर्टिकुलर सेक्शन. तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो हो रहा है, राइट. देन द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस अ क्यूब ऑफ साइड x having a cross section area A during the time interval small t इतने टाइम में हीट फ्लो हो रही है, and that amount of heat Q is directly proportional to the area of cross section of the each face of the cube, and Q is also directly proportional to the temperature difference T1 minus T2. Okay, and Q is also directly proportional to the time for which heat flows, कितने समय में वो heat flow हो रही है, and the amount of heat flows is inversely proportional to the distance between the hot end and the cold end. मान लो ये क्यूब छोटा, अभी इसको बड़ा कर दिया, मान लो इट इज लाइक दिस, इतना बड़ा साइज कर दिया उसको यहाँ पे. ओके, तो क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ाया तो अमाउंट ऑफ हीट विल बी ऑल्सो इंक्रीज, ज़्यादा हीट हो फ्लो होगी. तो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर दिस. नाउ अभी इसको कंबाइन करेंगे, एंड बाय कंबाइनिंग दिस वी कैन राइट Q is directly proportional to area, directly proportional to change in temperature, and directly proportional to time for which heat flows, and inversely proportional to x, the distance between the two ends of the cube. Abhi whenever in physics, whenever we are having this proportional design, we have to take some constant. तो कुछ constant लेना पड़ेगा यहाँ पे, and that constant will be capital K. So capital Q is equal to capital K into area into temperature difference T1 minus T2 into the time for which heat flows, and upon the distance small x. This is what. Okay, so where K is called as coefficient of thermal conductivity. Thermal conductivity, it is the property of substance. It depends on nature of material. So value of K is different for different substance. K is characteristics of substance or material, or nature of material. Characteristic of substance or depends on nature of material. Depends on nature of material, whether it is iron, cobalt, silver, gold, or etc. So it is different for different material. Now let us have the SI unit of Q. So K का फॉर्मूला बनाएंगे पहले. So we'll write K as a subject, thermal conductivity. So it can be written as Q multiplied by X divided by, ये जो पूरी टर्म इधर आ जाएगी, एरिया into temperature difference into time. So this is the formula for thermal conductivity, right? Coefficient of thermal conductivity. Now SI unit, इसका SI unit हम बना सकते हैं. The SI unit of K is very simple to define or to make, right? So what is the SI unit of Q? That is the amount of heat measured, capital J, joule, into meter divided by area measured in meter square into temperature in Kelvin or degree Celsius, and the time measured in second. S for second. अभी देखो यहाँ पे एक m मीटर कट हो जाएगा, तो we can write like this, joule per second, okay, into 1 by meter into 1 by Kelvin. So this can be written as like this in the power, negative power में कैसे लिखोगे, that is joule per second per meter per Kelvin. अगर केल्विन नहीं तो क्या लिख सकते आप, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज और जूल पर सेकेंड per meter per degree Celsius. Okay, but we know that joule per second is what?
the energy per unit time, the work upon time, right? So that is power. Okay, so the power is equal to, तो power का unit क्या है, joule per second is watt. तो जो भी heat है, that heat measured in watt. Okay, power, heating power. So watt per meter per Kelvin per degree Celsius. Sorry, per meter, watt per meter per Kelvin इनफ है. और इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखेंगे, वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, राइट. अभी इसका डायमेंशन हम फाइंड करेंगे. द डायमेंशन ऑफ के विल बी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, राइट. सो द डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू. डायमेंशन ऑफ क्यू कितना है, क्यू मतलब वर्क, एनर्जी. एनर्जी का क्या है, m1 L2 T-2, ओके, इंटू L1 डिवाइड बाय एरिया का क्या आएगा, L2 इंटू टेम्परेचर का K और टाइम का T. फाइन. अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी कैन राइट, एक एल कट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे एक एल बचेगा. नहीं तो L2 भी इसको भी कट कर सकते हैं, इसको रहने दो ऐसे भी, कीप दिस एज इट इज, L1 को ऐसे रहने दो. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर रिजल्टेंट, m1 L1, एक ही एल बचा है यहाँ पे. देन T2, अभी ये T1 जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, -3. और जो केल्विन का K है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट, सो दैट विल बी K⁻⁻1. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, विल गो इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस. So we know the formula for the heat supplied, heat flow. Q is equal to K into area into temperature difference into time T divided by X. Okay, we have derived this. Now from this we can write, if area is equal to unit square, that is 1 meter square, okay, and temperature difference T1 minus T2 will be 1 degree Celsius or 1 Kelvin, and the time for which it is 1 second. Then the distance between the two ends, that is x, is equal to 1 meter. Then if you are assuming all this value, then K is equal to thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity will be the amount of heat flow per unit area per unit rise in temperature, different 1 degree Celsius, and for 1 second, and the distance between the hot end and cold end is 1 meter. Okay, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और modify करेंगे. Now I will take this small t here. Okay, so from this I can write Q upon T, which is equal to K into area into T1 minus T2 divided by X. Okay, so again now differentiate this by using calculus, अभी आप थोड़ा कैलकुलस जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, राइट, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस. तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करना है. जस्ट डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dq बाई dt विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिफरेंशियल लेने के बाद माइनस आएगा, माइनस k इंटू एरिया इंटू dt बाई dx डिफरेंशिएट करने के बाद. ओके, तो हियर dt बाई dx क्या है, द dt बाई dx इज इक्वल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फॉल इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ओके, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम x ले दे, तो दिस विल बी द टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो अभी चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt डिवाइड बाय
डिवाइड बाय क्या आएगा, एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स, एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स। सो यहाँ से हमको और एक डेफिनेशन मिली है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया per unit temperature gradient. Got it? So very simple, right? Maybe I don't know whether it is given in the textbook or not, but we can define like this. Okay? So चलो लिख लेते हैं, coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity can also be defined as, may also defined as the rate of flow of heat, अभी देखो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, एरिया नीचे है ना, पर यूनिट एरिया कैपिटल ए, ओके, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट डी टी बाई डी एक्स इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट when the heat flow is at right angle perpendicular, right angle किसको, right angles to the faces, of a thin parallel sided slab of material. So this is what a definition. We have written the definition from this mathematical expression. Okay, dq by dt rate of flow of heat, A is the area, dt by dx is temperature gradient. Okay, now अभी यहाँ पे और थोड़ा एक लिख सकते q by t जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज q by t जो है q by t दैट इज द हीट पर सेकेंड, हीट फ्लो पर सेकेंड, राइट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट per second per unit time, okay, q by t will be the rate of flow of heat per unit time. q by t this can be taken as conduction rate, इसको हम क्या बोलते हैं, conduction rate, that is p conduction power, p conduction, मतलब how much amount of heat flow, heat क्या है, energy, right, how much amount of energy flow in how much time, so that we call power, heating power, right, power जो है हम इसमें यहाँ पे वैट में इसलिए मेजर करते हैं, राइट, तो कंडक्शन रेट दैट इज अ पी कंडक्शन दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी विच इज इक्वल टू क्या आएगा, के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इज टेम्परेचर डिफरेंस और dx क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, ओके. So this is what we can write for this, or this can be written as, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, q by t that is the p conduction, p conduction is equal to k a t1 minus t2 upon x, ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर p कंडक्शन. अभी आप इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, जो भी यूनिट आएगा, राइट, डायमेंशन नहीं दी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, there must be temperature difference, okay, T1 greater than T2, then only we can able to write this, because as long as temperature difference is not there, there will be no flow of heat. The flow of heat possible only when there is a temperature difference. I hope you all have understood this concept, because today we have discussed about thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity, right, and
द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो वी हैव डिस्कस. अभी हमको देखना है कि एनालॉजी बिटवीन द थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बीच में एनालॉजी क्या है वो देखना है. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Now let us see analogy between electrical resistance and thermal resistance. Okay. तो आज तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा है ओम्स लॉ के हिसाब से, राइट. तो व्हाट अ ओम्स लॉ स्टेट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट. टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी कैन टेक V इज इक्वल टू R इंटू I. तो R इज अ कॉन्स्टेंट हियर, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. ओके. और दिस इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू V बाय R. तो ये आपको याद रखना है. तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट गिव्स इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज. ओके. चलो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन थोड़ा याद करते. सो Q इज इक्वल टू K टाइम्स एरिया इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t डिवाइड बाय x. ओके. ये डेरिवेशन को ले लेते. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट Q बाई T इज इक्वल टू K इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x. सो व्हाट इज दिस Q बाई T, रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड द P कंडक्शन, कंडक्शन रेट, P कंडक्शन. ओके. दैट इज द हीट फ्लो पर सेकेंड, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड. तो यहाँ पे हमारा आएगा हीटिंग करंट, इसको क्या बोलते हैं हीटिंग करंट. दिस Q बाई T विल बी द P कंडक्शन, मतलब P कंडक्शन इज इक्वल टू हीटिंग करंट, हीटिंग करंट. और यहाँ पे हमारा I क्या है इलेक्ट्रिकल करंट. ओके. सो दिस हीटिंग करंट इज इक्वल टू K इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x. ओके. सो विच इज इक्वल टू, इसको अगर एनालॉग करना है तो वी कैन मेक दिस एनालॉजी V बाय R. ओके. तो यहाँ पे V क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, राइट. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2, राइट, डिवाइड बाय x अपॉन K इंटू एरिया, x बाय KA, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे देखो दिस इज अ P कंडक्शन, हीटिंग करंट. सो हीटिंग करंट इज इक्वल टू, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस. हो गया एनालॉजी. यहाँ पे क्या लेना है I इज इक्वल टू V बाय R. I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है कंडक्शन करंट, राइट. कंडक्शन करंट मीन्स Q बाई T, हीट फ्लो पर सेकेंड, दैट इज एनालॉगस टू दिस करंट इलेक्ट्रिकल करंट, राइट. V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, T1 माइनस T2 क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर. ओके. R क्या है रेजिस्टेंस, दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सो व्हाट कुड बी दिस, दिस कुड बी थर्मल रेजिस्टेंस. ओके. सो दिस कैन बी रिटन एज T1 माइनस T2 डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R सफिक्स T. सो RT इज इक्वल टू, RT का फॉर्मूला क्या बनेगा, RT इज इक्वल टू x अपॉन K इंटू एरिया. So simple. So this is what the thermal resistance x upon K. अभी इसका यूनिट बनाते हैं, SI यूनिट ऑफ RT, SI यूनिट ऑफ RT थर्मल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ x, x क्या है डिस्टेंस मीटर डिवाइड बाय, अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट डिराइव किया है. व्हाट वाज दैट, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन. ओके. और ये जो एरिया है इसका क्या आएगा मीटर स्क्वायर. तो मैं इसको क्या लगता हूँ 1/m लिख देता हूँ, राइट. 1/m लिखा तो क्या कहे दिस m, और दिस m कट हो जाएगा, यहाँ पे एक m है, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, राइट. तो क्या बचा है यहाँ पे फिर दिस, ये सेकंड ऊपर जाएगा, s सेकंड केल्विन पर जूल, सेकंड केल्विन पर जूल is the SI unit of resistance R suffix T.
what is the dimension of RT? Dimension of RT will be, right, the dimension of distance, that is L raised to 1. What is the dimension of coefficient of thermal conductivity? क्या डिराइव किया हमने? L raised to 1. What was that? M raised to 1 and M raised to 1, T raised to minus 3 and Kelvin minus 1. Kelvin minus 1. This is the dimension of coefficient of thermal conductivity into एरिया का क्या आएगा? L raised to 2. तो यहाँ पे एक L कट हो जाएगा, एक कट हो जाएगा, राइट. फिर क्या बचेगा? L raised to minus 2, M raised to minus 1, T raised to plus 3 and K raised to 1. This is the dimension of the thermal resistance. चलो चेक कर लेते whether it is correct or not. L raised to minus 2, M raised to minus 1, T raised to 3, K raised to 1. Correct, absolutely correct. Right. The next concept है thermal resistivity. जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है वैसे थर्मल रेजिस्टिविटी होता है, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, थर्मल रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1/K. तो जो भी यूनिट होगा इसका रेसिप्रोकल लेने का, दैट विल बी द थर्मल रेजिस्टिविटी, राइट. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K. दिस इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टिविटी. थर्मल रेजिस्टिविटी. ओके, चलो. नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? द मटेरियल विच हैज गुड थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, दैट विल बी बेटर कंडक्टर ऑफ हीट. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे एक टेबल दिया है. इफ द थर्मल कंडक्टिविटी इज लो, देन व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी? थर्मल रेजिस्टिविटी भी हाई. ओके, थर्मल रेजिस्टेंस विल बी हाई, राइट, एंड दैट विल बी इंसुलेटर. जिसका थर्मल कंडक्टिविटी लो है लेकिन रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सो दैट विल बी द इंसुलेटर. जिसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई है उसका थर्मल रेजिस्टेंस लो होगा एंड थर्मल रेजिस्टिविटी विल बी लो एंड दैट विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अंडरस्टूड? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको CET बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. जो हीट ट्रांसफर है उसके अलग अलग जो मोड है, राइट, वो हम अभी करने वाले. दैट इज द नेक्स्ट मोड इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कन्वेक्शन. अभी हमने कंडक्शन के बारे में सुना, पूरा डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन द नेक्स्ट लेक्चर.